آج کا جو موضوع ہے یہ بڑا خاص ہے. ویسے تو بائبل مقدس کا ہر ٹاپک، ہر بات خاص ہے، لیکن جو موضوع میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، رکھنے والا ہوں اب ناظرین کے سامنے، وہ اس لیے خاص ہے کہ اس کا تعلق ہماری پرسنل لائف سے ہے. بہت سارے موضوعات ہیں جو اجتماعی ہوتے ہیں، خدا سب سے کلام کر رہا ہوتا ہے اجتماعی طور پر، لیکن بہت سارے موضوعات ہیں بائبل مقدس میں، ایسے ٹاپکس ہیں جن کا تعلق ہماری پرسنل لائف سے ہوتا ہے. اس لیے بڑے دھیان سے سنیں. آج جس موضوع پر ہم سیکھیں گے وہ ہے فیصلہ کریں کہ آپ نے پاک زندگی بسر کرنی ہے. موضوع کیا ہے؟ فیصلہ کریں، ڈیسیژن، کہ آپ نے پاک زندگی، وی مسٹ ڈیسائیڈ ٹو لیو ہولی لائف، پاک زندگی گزاریں. اس کے لیے ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر ایک شخص جو نشے کا عادی ہے، وہ ہر وقت نشہ کرنے کے بعد کہ اب میں نے چھوڑ دینا ہے، اب میں نے چھوڑ دینا ہے، ہن میں سگٹا نہیں پینیاں. سگٹا نو لوگ نشہ نہیں سمجھتے. تسی ویکھو جڑے سگٹا پیندے انہاں دی جان کے میں ٹوٹدی ہے جدوں نہیں لبدی. اور حکومت وقت نے بھی، بلکہ تمام حکومتوں میں یہ بات لکھی جاتی ہے، جو پیکٹ ہوتا ہے اس کا، سگریٹس کا، کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے. بلکہ آج کل تو تصویر بنائی ہوئی بڑی خوفناک سی، وہ بندے دا چباڑا دکھایا گیا جس کینسر ہے. بے شمار لوگ نشہ کرنے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ ہمیں آئندہ نہیں پینی کرنی، لیکن پھر یہی حال ایمانداروں کا بھی ہے. ایماندار کہتے ہیں جی میں ہوں پاک زندگی بسر کرنے، ہوں میں دعا پکی کرنی ہے، ہوں میں گرجے جانا ہی جانا ہے. وہ پھر تھوڑی دیر کے لیے نظر آتے، پھر سکرین سے آؤٹ ہو جاتے، نظر ہی نہیں آتے کدھر چلے گئے. تو آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ صرف آپ اس کی خواہش ہی نہ کرتے رہیں، خواہش کا اظہار نہ کرتے رہیں، بلکہ اس کے لیے آپ فیصلہ کریں. اور آپ کو پتا فیصلے ہمیشہ مشکل ہوتے ہیں، وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں. فیصلہ کرنا سب سے مشکل کام ہے. وہ ایک گیت بھی گاتے ہیں نا، فیصلہ کر لو، یہ بڑا ضروری ہے. اور کئی لوگ ساری زندگی فیصلہ نہیں کرتے. جیسے پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا کہ مصرف کو کیا ہوا؟ ہوش آئی، اسے ہوش آ گیا. اور کئی لوگوں کو ساری زندگی ہوش نہیں آتی. لوگ ساری زندگی فیصلہ ہی نہیں کر پاتے. تو اس لیے آج اگر اس میسج کو آپ سن رہے ہیں، یہاں پر جتنے لوگ ہیں یا ناظرین ہیں ہمارے، اگر آپ ڈیسائیڈ کر لیں گے تو پھر آپ پاک زندگی بسر کریں گے. یہی تو مقصد ہے خداوند کا آپ کے لیے اور میرے لیے. یہی تو انفرادیت ہے مسیحی ایمان کی. آج صبح بھی میں بتا رہا تھا کہ وہ عبادتیں، وہ ریاضتیں، وہ دعائیں، وہ کلام، وہ سٹڈی جو آپ کی زندگی کو تبدیل نہیں کر رہی، اس کا فائدہ کیا ہے آپ کو؟ اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں تو بائبل تو پھر آپ کے کردار میں نظر آنی چاہیے نا. دیکھیے میرے ساتھ مقدس کلام میں سے 2 حوالہ جات ہوں گے، 2 ریفرنس، 2 حوالہ جات ہوں گے. ایک عبرانیوں 12:14 ہے اور دوسرا کرنتھیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا پہلا خط 6 باب 9 اور 10. 2 حوالہ جات. آئیے دیکھیں خدا کے کلام میں سے. پہلا حوالہ ہے عبرانیوں 12:14 اور دوسرا پہلا کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا پہلا خط ہے 6 باب 9 اور 10. 2 حوالہ جات. جی
खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, सबके साथ मेल मिलाप रखने, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के और तालिब रहो, उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना कोई देखेगा खुदावंद को ना देखेगा। देखेगा। दूसरा हवाला अगर आपने निकाला है, आसिफ पढ़े। क्या तुम नहीं जानते जी कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? हाँ, सुन ले गौर से, कोई शख्स धोखे में ना रहे। क्या तुम नहीं जानते? लोग भूले हुए थे, पालूस उनको रिमाइंडर दे रहे हैं, पालूस उनको मैसेज दे रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही में वारिस ना होंगे, के वारिस ना होंगे। फरेब ना खाओ। हाँ, ये धोखा है शैतान का कि लोग बदकारियां भी कर रहे हैं और वो अपने आप को रासबाज भी कह रहे हैं। फरेब ना खाओ, फरेब दिया हुआ है शैतान ने लोगों को। फिर फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। ना बुतप्रस्त, ना जनाकार, ना अय्याश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। कौन से जालिम। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੁਬਾਰਾ पढ़ो। पाकिस्तान जितने जालमा की तादाद ही बड़ी है। कल ही की बात है, हम गुजर रहे थे, एक पागल औरत थी बेचारी, वो पता नहीं क्या उसका प्रॉब्लम था, वो किसी चीज को छेड़ रही थी। दुकानदार निकला और उसको वो सड़क के ऊपर फेंक रहा था उठा के। तो ये जुल्म ही है ना कि एक बंदा जिसका ज़हन ही ठीक नहीं है, जिसका ज़हन ही खराब है, आप उसे मार रहे हैं। उसको तो पता नहीं वो क्या कर रहा है। इसको दोबारा बोले, ये आखिरी जो बताई गई है किस्म गुनाह की, जिनके बारे में कलाम कहता है ये खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। ये कौन सी है? जालिम। कौन से? जालिम, जुल्म करने वाले, जुल्म से भरे हुए लोग। इस हवाला में जो असफ भाई ने पढ़ा है उसमें 10 इकसाम के गुनाह लिखे हुए हैं। 10 काइंड्स हैं उसके, 10। खुदा से हम मौजज़े मांगते हैं, खुदा से हम सरफराजी मांगते हैं, खुदा से हम माली बरकतें मांगते हैं, और खुदा हमसे पाकीज़गी मांगता है। खुदा क्या मांगता है? हम खुदा को कहते हैं हमें ये भी दे दे, हमें वो भी दे दे, हमें फलां भी दे दे, और पाक होने के लिए हम तैयार नहीं है। पाकीज़गी के लिए हम संजीदा ही नहीं है। एक तस्वराती कहानी है, और कोई शख्स दुकान पर जाता है और वो फरिश्ते से कहता है मुझे फलां फल दे दे, मुझे फलां फल चाहिए। और फरिश्ता आगे से कहता है हमारे पास फल नहीं, बीज होते हैं। हमारे पास फल नहीं। अब जो बीज है वो क्या करता है? बीज को बोना पड़ता है। बीज को बोने के बाद उसका इंतजार करना पड़ता है, और इंतजार के साथ साथ उसकी देखभाल करनी पड़ती है। उसकी गोडी, जो पंजाबी च कहते ना गोडी करंदा है ना, उसमें से जड़ी बूटियां, डीला। अक्सर हमारे घर में घास लगा हुआ है हमारे लॉन में, तो वो जो डीला है वो अलग ऊपर नजर आ जाता है, और वो बाकी जो घास है उससे बढ़ने नहीं देता। उसे तल्फ करना बहुत जरूरी है। बीज को बोना पड़ता है, बीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बीज के लिए इंतजार करना पड़ता है, बीज बोने के बाद उसकी रखवाली करनी पड़ती है। आप याद रखें, आपकी रूहानी जिंदगी में जब तक बीज नहीं बोया जाएगा आप फलदार नहीं हो सकते। आप कहते हैं मुझे फौरन फल मिल जाए। हर कोई शख्स फल हासिल करना चाहता है, फल से लुत्फ अंदोज होना चाहता है, सरफराजी से लुत्फ अंदोज होना चाहता है, रूहानी बरकतों से
लुत्फ अंदोज होना चाहता है, माली ब्लेसिंग्स चाहता है, सरफराजी चाहता है, बुलंदियां चाहता है, लेकिन खुदा चाहता है कि आप पाक हो जाएं। खुदा आपसे ये तवक्को रखता है कि आप फलदार जिंदगी बसर करें, उसके लिए बीज बोना पड़ेगा। आइए जरा एक और हवाला देखें, फिर आगे बढ़ते हैं। कुरिन्थुस की कलीसिया को दूसरा खत लिखा गया जो है पौलुस रसूल का, दूसरा कुरिन्थियों दूसरा बाब 11वीं आयत, दूसरा खत है कुरिन्थुस की कलीसिया को लिखा गया और उसका दूसरा बाब है, 11वीं आयत मुकद्दस है। ताकि शैतान का हम पर दाव ना चले, ताकि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसके हीलों से ना वाकिफ नहीं। हम उसके हीलों से ना वाकिफ, यानी हमारे लिए ये कोई हैरानी की बात नहीं है, अमेज नहीं है हम कि शैतान ने हमला कर दिया, या आप कहें कि जी ओ मैंने तो पता ही नहीं चलिया, शैतान ने तो मैनू एवं ही बहका लिया और ऐसे ही मुझे धोखा दे दिया, ऐसे ही मुझे उसने जो है जाल में फंसा कर मुझे गिरा दिया है। पौलुस रसूल खबरदार कर रहे हैं, ईमानदारों को खबरदार कर रहे हैं। और क्या खबरदार कर रहे हैं कि आप तो माइक में बोले ना आप, ताकि शैतान का, हाँ जी, ताकि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसके हीलों से ना वाकिफ नहीं। क्यों हम पर नहीं वो चला सकता अपना वार? क्योंकि हम उसकी सारी मकारी, फरेब, धोखा, चालाकी से पूरे तौर पर वाकिफ है, पूरे तौर पर वाकिफ है। हमें पता है कि वो कैसे कैसे काम करता है। आपने देखा होगा अक्सर आप चर्च के लिए निकलने लगते हैं तो कोई ना कोई तानू शैतान दी टूटी लाजमी राज लभ जाएगी, ये ताड़े घरों ही दिल करे तानू मरोड़न ले गया भी ऐदी ते इबादत खराब कर। तो अगर तो आप समझदार हैं तो फिर आप होशियार हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने कलाम को ध्यान से नहीं पढ़ा, ना सुना, तो फौरन जल्दी आप उसके ट्रैप में आ जाएंगे और आप बुरे तरीके से जख्मी हो जाएंगे। और यही काम है शैतान का कि वो आपकी जिंदगी में मुदाखलत करे, तीर मारे, आपको घायल करे, जख्मी करे, मुख्तलिफ तरीकों से वो आपको ट्रैप करके आपकी जिंदगी में मुदाखलत करता रहे। लेकिन चूंकि मेरा टॉपिक जो है वो पाकीज़गी है, पाकीज़गी की तरफ फिर मैं आना चाहता हूं कि हमें डिसाइड करना है। हम सिर्फ डिसाइड ना करें बल्कि डिसाइड करें, हम फैसला करें। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे, ये फैसला करना पड़ेगा आपको, वरना तुसी गिरजे आंदे रहना वा, ठीक है, ते इबादत करते रहना वा, गीत गाते रहना वा, लेकिन जिंदगी च पाकीज़गी कोई नहीं आनी। इसके लिए डिसाइड करना पड़ेगा। यही आज प्रॉब्लम है कि इस पर चर्च में बात नहीं की जाती, लोग नाराज हो जाते हैं। मसलन जो शराब पीने वाला है, सिगरेट पीने वाला है, वो मेरी कलीसिया च नहीं आन लगा, उन्हें पता उत्थे इहदे खिलाफ गल की जाती है। और इसी तरह बाकी जो गुनाहों का जिक्र है, 10 गुनाहों का जिक्र है, वो नहीं आएगा इधर, क्योंकि उसे पता है वहां पर इसके खिलाफ तालीम दी जाती है। इसलिए लोग चिकनी चोपड़ी बातों को सुनने के आदी हो चुके हैं। शुगर कोटेड मैसेजेस जो हैं वो उन्हें बड़े पसंद हैं। वो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पर ऐसी टीचिंग दी जाती है जिससे लोगों की जिंदगी का कोई लेना देना नहीं है। वो रस्मी फर्जी इबादतें करके घरों को वापस आ जाते, चले जाते हैं। तो आज मैं ये चाहता हूं कि आप इस चीज को सीखें कि हमें डिसाइड करना है, फैसला करना है, हमने पाक जिंदगी बसर करनी है। जिस तरह लिखा है कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, हालेलुया। लिखा है वो कदूस है, तुम बाग बनना,
वो कदूस है और तुम पाक बनना। लिखा है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। क्या बनो? सारे चाल चलन में, चंद एक बातों में नहीं, सारे चाल चलन में हमें दुरुस्त होने की जरूरत है। 4 पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूं आप भी नोट कर लें। सबसे पहले इब्लीस आपकी स्पिरिट पर अटैक करता है, आपकी रूहानी जिंदगी पर, जहन पर, सोचों पर, तसव्वुरात पर, जज्बात पर। आपको पता है कि आपकी जो सबसे ज्यादा लड़ाई है वो यहां पर चल रही होती है, आपके दिमाग में। ऐसे ही होता है ना, कचीचियां भी आ रही होंगी, ये मैनू मिल जाए सही तो मैं दंद भन्न देने, इधर ही सारा मसला चल रहा होता है ना, इधर ही वो अटैक करता है आपकी स्पिरिट पर, आपके तसव्वुरात में। आप फाइटिंग, लड़ाई का माहौल बना रहता है आपके, आप तसव्वुरात की जंग लड़ते रहते हैं। अगर आप इस हालत से दो चार हैं, आपके पास जो आपका माइंड है उसमें पीस नहीं है, तो फिर समझ लें कि इब्लीस ने आपकी रूह पर अटैक कर दिया हुआ है, आपकी स्पिरिट जो है उसके कब्जे में जा चुकी है। और खुदा नहीं चाहता कि आपकी स्पिरिट पर इब्लीस का कब्जा हो, आपकी स्पिरिट को इब्लीस कंट्रोल करे। खुदा चाहता है कि पाकरू कंट्रोल करे, पाकरू आपकी जिंदगी में आपको पीस हो। आप जो भी हालात, सर्कमस्टांसेस आपके उसमें से आप गुजर रहे हैं, आपकी जिंदगी में पीस हो। मैंने पिछले दिनों भी बताया था कि यीशु मसीह ने शागिर्दों को इसलिए नहीं डांटा था जब वो कश्ती में चिल्ला उठे कि हमें बचा, हम हलाक हुए चाहते। इसलिए नहीं डांटा था कि उनको तूफान थमाने की समझ नहीं थी, उनके अंदर तूफान थमाने का ईमान नहीं था, नहीं, इसलिए नहीं डांटा। इसलिए डांटा था कि तूफानों में शांत कैसे रहना है। तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी, मुश्किलात आएंगी, उनमें पीसफुल कैसे रहना है, आंधियों और तूफानों में कायम कैसे रहना है। इसलिए खुदा ने डांटा था कि तुम डर गए, खौफजदा हो गए। यही आज प्रॉब्लम है कि छोटी सी मुसीबत आती है, हमारी दुआ भी खत्म हो जाती है, हमारी बाइबल भी खत्म हो जाती है, हम गिरजे जाना भी छोड़ देते हैं, हम फेलोशिप भी छोड़ देते हैं, हम खुदा से दूर चले जाते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि इब्लीस ने हमारे तसव्वुरात पर, हमारे जहन पर, हमारी सोचों पर कब्जा किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है। और आप हर वक्त जहनी तौर पर लड़ाई का शिकार रहते हैं, कंफ्यूज्ड, फैसला साजी गलत। सबसे पहले वो आपकी स्पिरिट को टारगेट करता है, अटैक करता है, फिर आपके बदन पर अटैक करता है। जब आप गुनाह में जिंदगी बसर करेंगे, पाकीज़गी नहीं होगी, तो फिर आपके बदन पर भी वो अटैक करेगा, आपको कमजोर करेगा, आपकी जो बॉडी है उसमें पेन आ जाएगी, दर्द ही नहीं, ताड़ी जान छड़न गया। आप हर वक्त, जैसे ना वो पंजाबी कहते हैं, हर टाइम ही दुखिया ही रहता है। आप हर वक्त दुखते रहेंगे, दुखते रहेंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी में पाकीज़गी नहीं है। और जब आपके पास पाकीज़गी का हथियार होगा, बीमारियां, कमजोरियां, शैतान तीर चलाएगा और आप पाकीज़गी के साथ उस पर गालिब पाएंगे। पाकीज़गी इतना बड़ा हथियार है, इतना जबरदस्त स्ट्रॉन्ग हथियार है ईमानदार के पास, कि अगर ये आपकी जिंदगी में आ जाए तो फिर इब्लीस आपकी बॉडी पर अटैक नहीं कर सकता। बदन बोझल रहता है, सुस्ती रहती है, सुस्ती पड़ी रहती है, हर वक्त नींद आई रहती है आपको इसलिए थोड़ी बनाया कि भी दिने भी सुते रहो तो रात भी सुते रहो। कई तो दिने भी सुते रहते ने, रात तो चलो वैसे ही सौना है ना, वो तो एक कुदरत का निजाम है ना भी तुसी रात के टाइम सोवो।
वही मसला है ना, क्योंकि लोगों की जिंदगी च पाकीज़गी नहीं है, तो काम ही सारा उल्ट होया है। वो रात जागते रहते हैं, दिने सुते रहते हैं। खुदा कहता है रात सोना है तो दिने जागना है, चूंकि लोग गलत राहों पर चल पड़े हैं, लोगों की रविशें गलत हो चुकी हैं। इस सबब से लोग रात को जागते हैं और दिन को सोते हैं, और सारी जिंदगी का मकसद ही बर्बाद कर लिया। आपकी जिंदगी का मकसद ही खराब हो जाएगा अगर आप सारा दिन सोए रहेंगे। जो पर्पस है खुदा का यूनिवर्स में, कायनात के अंदर जो खुदा ने सिस्टम रखा है। तीसरा उसका अटैक, अगर पाकीज़गी नहीं है तो फिर आपकी जिंदगी में जो रुपया पैसा है इसकी भी कमी आ जाएगी। इसकी बड़ी अहमियत है। रुपया पैसे को मामूली ना समझें। मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि रुपया पैसा सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन रुपए पैसे से बहुत सारे काम होते हैं। यानी आज ये टेक्नोलॉजी है हमारे पास, ये वसाइल है, ये उसी रुपए पैसे से खुदा ने दिए हैं। इब्लीस आपके जो माली मामलात हैं उस पर अटैक करता है, और एक खादिम इसके बारे में कहता है कि शैतान किसी भी ईमानदार, किसी भी कलीसिया पर अटैक करने से पहले, किसी भी मिनिस्ट्री में मुदाखलत करने से पहले उनके रुपए पैसे पर अटैक करता है। क्योंकि जब आपकी इकॉनमी, आपका रुपया पैसा, आपके घर का बजट खराब हो जाएगा, आपके घर से मसाइल ही नहीं खत्म होंगे। हर वक्त आपका आपस में झगड़ा, मियां बीवी का झगड़ा, बच्चे शिकवे करेंगे, हमें ये नहीं लेके देते, वो नहीं लेके देते। लेकिन जब आपकी जिंदगी में पाकीज़गी होगी तो फिर आपका रुपया पैसा भी जो है वो हमेशा दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल होगा और आप बड़ी खुशहाल जिंदगी बसर करेंगे। आज क्या मसला क्या है? आप देखें घरों में लड़ाई की सबसे बड़ी वजह लोगों के माली मामला ठीक नहीं है। जो उनका जो बजटिंग है, रुपए पैसे के मामला है, वो ठीक नहीं है घरों में, और लोगों के घरों में लड़ाई नहीं खत्म होती। आपने नोट किया होगा। तो अजीजों, हमें याद रखना है कि इब्लीस जो है हमारे रुपए पैसे पर भी अटैक करता है। और फिर चौथा, आपके जो रिश्ते हैं, मां और बेटे का रिश्ता, उसका अपना एक लेवल है और मेयार है। मियां बीवी का, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, उसका अपना एक मेयार है। लेकिन इब्लीस इन रिश्तों में खराबियां पैदा कर देते हैं। यहां तो अम्मी की पूरी गल मनी जाती है, भी जो अम्मी ने कहा तो वही होना है, तो यहां फिर खतूने अव्वल की गल मनी जाती है। सुने, मैं ये चाहता हूं कि माँ और बाप का जो अजीम रिश्ता, उसकी भी हमेशा कदर करें और अपनी बीवी से भी मोहब्बत रखें। कलाम इसकी हमें तालीम देता है। बहन भाइयों से भी प्यार करें, रिश्तेदारों से भी, दोस्तों से भी। ये नहीं कि सारी फैमिली का प्यार आप दोस्तों को दे दें, ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि कई लोगों को हमने देखा है कि वो दोस्तों की खातिर अपने अजीम रिश्ते गंवा देते हैं। तो हमें तमाम जो रिश्ते हैं हमारी लाइफ में, उनको हमने उनकी जगह पर रख कर देखना है, और कलाम जिसकी हमें तालीम देता है उसको हमने उसको उस पैटर्न, उसी तरीके के साथ जिस तरह बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, हमने देखना है। तो फिर शैतान को कभी मौका नहीं मिलेगा। क्यों लोग आज नाकाम जिंदगियां बसर कर रहे हैं? क्योंकि उनके घरों में आप देख लें, जो रिश्ते हैं उनमें बहुत ज्यादा तनाव है, और हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट करना है, एतमाद करना है। मैं यूसुफ के बारे में बहुत ज्यादा, दाऊद और यूसुफ पर मैं बहुत ज्यादा टीचिंग देता हूं, खासतौर पर जब सेमिनार्स या हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होती हैं। मेरे सामने दाऊद और यूसुफ का जो करैक्टर है वो बहुत बड़े किरदार है। यूसुफ के बारे में मैं गौर करता हूं कि खुदा का बंदा यूसुफ, जब उसका मालिक उस पर एतमाद कर रहा था, उस पर भरोसा कर रहा था, और उसने अपने घर के दरवाजे उसके लिए खोल दिए थे,
تو یوسف نے اس کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی. حالانکہ اس کی بیوی بدکار تھی اس کے مالک کی, اور وہ اس کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہ رہی تھی, لیکن یوسف نے جو اس کی لمٹس تھی, جو اس کی حدود تھی, اس نے ان کو کراس نہیں کیا. اب غور کریں, یوسف اپنے مالک کے اعتماد پر بھی پورا اترا ہے اور اپنے خدا کے اعتماد پر بھی. یہ بات میں آپ کو سکھانا جا رہا ہوں. دو طرح کا اعتماد ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے میاں بیوی کا, دوستوں کا, بھائیوں کا, باپ اور بیٹے کا. ایک اعتماد ہوتا ہے آپ کا اور خدا کا. اب بے شمار لوگ نہ تو خدا کے اعتماد پر پورا اترتے ہیں اور نہ آپس میں وہ ایک دوسرے کے اعتماد پر پورا اترتے ہیں. اب غور کر رہے ہیں, اور میں نے یہاں پر ایک نوٹ دیا ہے, اگر آدمی آدمی پر ٹرسٹ کرنے نہیں کر رہا تو خدا آدمی پر کیسے ٹرسٹ کرے گا؟ اگر ہم ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے, ٹرسٹ نہیں ہے ہمیں ایک دوسرے پر, تو پھر خدا ہمارے اوپر کیسے اعتماد کر سکتا ہے؟ ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ ہمارے رشتوں میں اس لیے خرابی ہے, اس لیے بگاڑ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر بھی, تسی گھر جی ویکھ لو, تسی گھر جی ویکھ لو کہ لہدا ہی پاکٹاں بڑیاں ہوندیاں نے, تے ایک دوسرے کو جھوٹ بولی جاندے میرے کو تو پیسے ہی کوئی نہیں گئے, میرے کو تو پیسے. ہم ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر رہے, ہم ایک دوسرے کو جیتنے کی کوشش نہیں کر رہے. اور جب ہم آدمیوں پر بھروسہ نہیں کر رہے تو خدا ہم پر کیسے بھروسہ کرے گا؟ ہمیں غور کرنا ہے اس پر. اور ابلیس ہمارے رشتوں کو خراب کرتا ہے, بگاڑتا ہے, بے اعتمادی پیدا کرتا ہے. آپ کو اپنی دیانتداری ثابت کرنا ہے, آنیسٹ ہونا ہے. آنیسٹی بہت ضروری ہے. آنیسٹی جو ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. جو پاکستان میں نہیں کہہ سکتا ہوں سب آنیسٹ نہیں ہے, بہت سارے لوگ ہیں, کیونکہ خدا ہمیشہ اپنے لیے ایسے لوگوں کو بچائے رکھتا ہے. آنیسٹ لوگوں کی ضرورت ہے. پاکستان میں سیاسی طور پر بھی آنیسٹ لوگوں کی ضرورت ہے. پاکستان میں کلیسیائی جو لیڈرشپ ہے, روحانی طور پر آنیسٹ لوگوں کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ جن پر آپ زیادہ اعتماد کر رہے ہوتے ہیں, کئی دفعہ وہی آپ کو دھوکہ دے جاتے ہیں. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ خدا پیار ساری دنیا سے کرتا ہے, اعتبار ساری دنیا پر نہیں کرتا. خدا کا پیار سب کے لیے ہے. تو میرے عزیز, آج کلام خدا میں سے جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ فیصلہ کریں کہ آپ نے پاک زندگی بسر کرنی ہے. آپ کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, آپ کو خدا دیکھ رہا ہے. خدا کی نگاہ آپ کے اوپر ہوتی ہے. اگر آپ کچھ غلط کر رہے ہیں, رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, کسی کے سامنے نہیں کر رہے, لیکن خدا آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور جس دن آپ خدا کے اعتماد پر اتر آئے, دیانتداری ہو گئی آپ کی زندگی میں, تو پھر زمین پر آپ کے رشتے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب ہمارا آسمانی کنیکشن ٹھیک ہوتا ہے تو زمین کے سارے کنیکشن ٹھیک ہوتے ہیں. جب ہمارا خدا کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ درست ہوتا ہے تو زمین پر باقی سارے رشتے درست ہوتے ہیں. اور جب ہمارا خدا کے ساتھ کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے تو پھر نیچے والے کنیکشن خود بخود خراب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے خدا کو خوش کریں, اس کے ساتھ پیوست رہیں, اس کے ساتھ جڑے رہیں, اس کی حضوری میں جھکے رہیں, اور اپنی زندگی میں ہمیشہ اول درجہ فرسٹ پرائورٹی اپنے خداوند کو دیں. آمین.